میں نے بڑے بیٹے کی شادی اپنے بھانجے سے کروائی تو شادی کی رات ہی اس نے اسے طلاق دے دی۔ میں نے غصے میں آ کر اسے گھر سے نکال دیا اور دوسرے بیٹے سے اس کی شادی کروا دی، لیکن دوسرے نے بھی شادی کی ہی رات اسے طلاق دے دی۔ میں نے راز معلوم کرنے کے لیے تیسرے بیٹے کی زبردستی شادی کروائی اور دلہے کی جگہ خود کمرے میں چلی گئی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب تیسرے بیٹے کے کمرے میں آتے ہی۔ میرا نام سامیہ بانو ہے، میں کراچی کی رہنے والی ہوں، والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میری شادی ایک بہت اچھے خاندان میں ہوئی تھی، سسرال والے سب بہت اچھے تھے۔ میری عادت ہے کہ روز صبح واک پر نکل جاتی تھی، میری ساس بھی میرے ساتھ ہی ہوتی تھی، مگر 10 منٹ بعد ہی وہ اپنا راستہ تبدیل کر کے کہیں چلی جاتی اور 1 گھنٹے بعد خود ہی واپس آ جاتی تھی۔ اکثر کھوئی کھوئی رہتی تھی، گھر میں بھی چپ چاپ رہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری ساس اندر سے بہت دکھی ہے۔ میں بہت کوشش کرتی تھی کہ وہ مجھے اپنے دل کا درد اور حال بتائے، مگر وہ ایسا نہیں کرتی تھی۔ میں ایک ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھی۔ ایک دن دوپہر کو ہاسپٹل سے گھر آتے ہوئے میں نے اپنی ساس کو جیل کے باہر دیکھا۔ وہ سڑک کی دوسری جانب تھی، اس لیے جب تک میں وہاں پہنچتی وہ جیل کے اندر چلی گئی۔ میں نے گیٹ پر کھڑے آدمی سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، یہ ماں جی اکثر یہاں آتی ہیں۔ میں وہاں باہر ہی رک گئی۔ آج میں ساس سے بات کرنا اور معلوم کرنا چاہتی تھی کہ آخر یہ کیا وجہ ہے اس سارے معاملے کی۔ 1 گھنٹے بعد جب میری ساس جیل سے باہر نکل کر آئی تو مجھے سامنے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے پیار سے کہا، ماں جی آپ یہاں کیوں آتی ہیں؟ کس سے ملنے آتی ہیں؟ آج مجھے سب جاننا ہے۔ میری ساس کہنے لگی، تم گھر چلو میں سب بتاتی ہوں۔ ہم گھر آ کر کمرے میں بیٹھ گئے اور میری ساس اپنی کہانی سنانے لگی۔ کہنے لگی، میری شادی انتہائی امیر گھرانے میں ہوئی۔ میرے شوہر مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ اپنے خاندان میں سب سے بڑی بہو ہونے کے ناطے سب میری بہت عزت کرتے تھے اور میرا ہر حکم مانتے تھے۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ خاندان بھر صرف میں ہی تھی جس کے صرف بیٹے ہی بیٹے تھے۔ میرے 5 بیٹے تھے اور بیٹی کوئی نہیں تھی۔ مجھے بیٹی کی بہت خواہش تھی، مگر اللہ نے شاید میری قسمت میں بیٹی نہیں لکھی تھی۔ میں تو یہی چاہتی تھی کہ میری پہلی اولاد ہی بیٹی ہو، مگر یہ حسرت ہی رہی۔ 5 بیٹا ابھی 2 سال کا ہی ہوا تھا کہ میرے شوہر کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ میرے بیٹوں میں 2 سال کا ہی فرق تھا اور وہ سب ایک ساتھ جوان ہو رہے تھے۔ خاندان بھر کی نظریں میرے بیٹوں پر جمی تھی کیونکہ وہ نہایت شریف، سعادت مند اور خوبصورت تھے۔ میں نے ان کی پرورش بہت اچھے سے کی تھی۔ مجھے اپنی تربیت پہ ناز تھا۔ میرا بڑا بیٹا عمر 15 سال کا تھا جب میری بہن اپنی بیٹی کو لیے میرے گھر آئی۔ میری بھانجی 12 سال کی تھی اور بہت پیاری سی تھی۔ میری بہن نے مجھے کہا، آپا ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، ہم اپنی بیٹی کی پرورش نہیں کر سکتے، اس لیے اسے آپ کے پاس چھوڑنے آئی ہوں۔ آج سے یہ آپ کی بیٹی ہوگی، آپ کو بیٹی کی خواہش تھی نا، اب اسے بیٹی بنا لے۔ میری بھانجی مونا مجھے شروع سے ہی بہت پیاری تھی۔ میری کوئی بیٹی نہیں تھی تو میں اپنی حسرت اس کو پیار کر کے پوری کر لیتی تھی۔ اب تو وہ میری بیٹی ہی بن کر ہمارے گھر آ گئی تھی۔ وہ مجھے خالہ ماں کہتی تھی اور میرے آگے پیچھے گھومتی تھی۔ میرے سارے کام اپنے ہاتھوں سے اور بھاگ بھاگ کر کرتی تھی۔ مجھے بھانجے سے بہت محبت ہو گئی تھی جب اچانک 2 ماہ بعد اس کا باپ اسے لینے آ گیا۔ کہنے لگا، میری بیٹی مجھے واپس کرو، اگر پاس رکھنا ہے تو اس کے نام کچھ پراپرٹی لگاؤ تاکہ اس کا مستقبل محفوظ رہے۔ میں بھانجے سے جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اپنا ایک فلیٹ اس کے نام کر دیا تاکہ اس کے باپ کو تسلی ہو جائے۔ فلیٹ نام لگنے کے بعد اس کا باپ چپ کر کے چلا گیا۔ میری بہن اور بہنوئی اکثر مونا سے ملنے آتے تھے اور کبھی کبھی وہ بھی اس سے ملنے چلی جاتی تھی۔ میں اپنی بہن کی مالی مدد کے لیے اکثر اسے رقم وغیرہ بھجواتی رہتی تھی۔ میرے سارے بیٹے بھی مونا سے بہت پیار کرتے تھے، اسے سگی بہن سمجھتے تھے۔ جب مونا کی شادی کی عمر ہوئی تو میں نے رشتے تلاش کرنے کے شروع کر دیے۔ میری بہن پھر میرے گھر آئی اور کہنے لگی، آپ مونا سے اتنا پیار کرتی ہیں، اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں کیوں نہیں رکھ لیتی؟ میں نے پوچھا کیسے؟ تو کہنے لگی، آپ اس کی شادی اپنے بڑے بیٹے سے کروا دیں، وہ ہم سب کی نظروں کے سامنے رہے گی۔ اس خیال سے میں بھی چونک گئی کہ ہاں، میں نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ اصل میں نے اسے بیٹی اور بیٹوں کی بہن سمجھا تھا، لیکن پھر میری بہن نے مجھے سمجھایا کہ بہن بھائی سگے ہی ہوتے ہیں، باقی منہ بولوں کی باتوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے مونا اور عمر کی شادی میں کوئی حرج نہیں۔ اس لیے میں نے بیٹے سے یہ بات کی تو وہ دنگ رہ گیا۔ کہنے لگا کہ امی، میں نے مونا کو ہمیشہ چھوٹی بہن سمجھا ہے، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ شادی کے لیے مان نہیں رہا تھا، مگر میں نے اس کو راضی کر لیا۔ بیٹے کی شادی بھانجے سے کر کے میں بہت خوش تھی۔ مجھے یہ بھی تھا کہ اگر باہر سے کوئی اور بہو لاؤں گی تو وہ جانے کیسے نکلے گی، اچھا ہے گھر کی بات ہے گھر میں ہی رہے گی۔ دونوں کو کمرے میں چھوڑ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔
अभी मुझे ज्यादा देर नहीं हुई थी कि बेटे के कमरे से चीखने की आवाजें आने लगी। मैं घबरा कर बाहर भागी कि खुदा खैर करे, क्या हो गया। घर में जितने भी मेहमान थे वो सब भी आ गए। बेटे के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो सोफे पर बैठा हुआ था, जबकि मेरी भांजी, जो अब मेरी बहू थी, कमरे के पीछे पीछे खड़ी रही, रो रही थी। मैंने आगे बढ़कर इसे गले से लगाया और पूछा कि क्या हुआ। इसने जवाब नहीं दिया। मेरा बेटा अपनी जगह से उठा और बोला, अम्मी मैंने इसे तलाक दे दी है। मैं सुन रह गई। सब मेहमानों के मुंह में हैरत से खुल गई कि नए नवेली दुल्हे ने कमरे में आते ही बीवी को तलाक दे दी। मैंने तैश में आकर बेटे के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहा कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, होश में तो हो। कहने लगा, अम्मी सच कह रहा हूँ, मैंने वाकई से तलाक दे दी है। मैंने अपने बेटे को फिर से थप्पड़ मारे और चिल्लाते हुए पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। वो कुछ न बोला तो मैंने गुस्से में इसे घर से बाहर निकाल दिया और कहा, आज के बाद तुम मर गए हो हमारे लिए, आइंदा इस दहलीज पर कदम मत रखना। मेरा बेटा घर से चला गया, मगर इसने मुझे वजह नहीं बताई कि इसने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी। मैंने भांजे से पूछा तो कहने लगा, मुझे नहीं पता। कमरे में आते ही कहने लगे, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, इसीलिए तलाक देता हूँ। इतना बताकर मेरी बहू फूट फूट कर रोने लगी। सारे मेहमान हम पर थू थू करने लगे। मेरे बेटे ने इतने लोगों के सामने मेरी नाक कटा दी थी। लोग मेरी तरबियत से सवाल उठाने लगे। मेरी बहन भी वही थी। वो अपनी बेटी को अपने कमरे में ले गई और मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा इतना काबिल और सादतमंद बेटा यूं मुझे रुसवा करेगा और अपनी बीवी को इसने तलाक क्यों दी गई होगी। मुझे वजह जानने की बहुत बेचैनी हो रही थी कि कोई तो वजह होगी। अगले दिन मेरी बहन और बहनोई ने बहुत हंगामा किया और कहने लगे कि अब हमारी बेटी का मुस्तकबिल खराब हो गया है, कोई इस तलाक याफ्ता से शादी क्यों करेगा। आपके बेटे ने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी है। इसके पास तो कोई दौलत या जायदाद भी नहीं की कि कोई इससे दौलत की लालच में ही शादी कर ले। मैं बहुत शर्मासारी महसूस कर रही थी कि मेरे बेटे की वजह से आज मुझे यह दिन भी देखना पड़ा। मैंने सोचा तो मुझे लगा कि मेरा बहन भी सही कह रहा था। मैंने बड़े बेटे को घर और जिंदगी दोनों से निकाल दिया था, इसलिए इसके हिस्से की सारी जायदाद भांजी के नाम कर दी। मेरी भांजी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए वालिदैन के कहने के बावजूद वापस ना गई। कहने लगी, खाला ही मेरी माँ है, मैं इधर ही रहूंगी। तलाक के बाद अक्सर मेरी भांजी घर से चहल कदमी करने करीबी पार्क में चली जाती थी। मैं भी जाने देना चाहती थी कि बच्ची बेचारी का दिल लगा रहे। मोना मुझे दिखाने के लिए खुश रहती थी, मगर मैं जानती थी कि वो खुश नहीं है। कभी कभी मुझे इसकी हरकतें अजीब भी लगती थी, मगर मैं ये सोचकर इग्नोर करती थी कि शायद सदमे की वजह से ऐसी हो गई है। वो सारा सारा दिन फोन पर बातें करती, कहती अम्मी से बात कर रही हूँ। कभी वो बहुत परेशान होकर रोने लग जाती। इन्हीं दिनों मेरे सबसे छोटे 2 बेटों का एक्सीडेंट हो गया और छोटा बेटा मर गया तो मेरी कमर ही टूट गई। एक बेटा पता नहीं कहाँ दर बदर भटक रहा था और दूसरा भी मुझे छोड़कर चला गया था। मेरी भांजी ने मेरा बहुत साथ दिया था और मेरी दिलजोई की थी। कुछ अरसे बाद मेरी बहन फिर आई और कहने लगी कि अपने दूसरे बेटे की मोना से शादी कर दो, क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत है। इसकी बात सुनकर मैं राजी हो गई और दूसरे बेटे को बुलाकर कहा कि मैं तुम्हारी शादी मोना से कर रही हूँ। वो इसी की उम्र का था, लेकिन फिर भी वो हिचकिचा रहा था। कहने लगा, भाई ने इसे पता नहीं क्यों तलाक दी है, मैं कैसे इससे शादी कर लूं। मैंने बेटे को अपनी कसम देकर राजी किया कि मेरा मरामो देखोगे अगर तुमने मोना से शादी ना की तो। वो राजी हो गया और मोना से शादी कर ली। मेरी भांजी बेचारी, इसने तो मुझे साफ कह दिया था कि खाला आप मेरी माँ हैं, किसी फकीर से भी शादी करवाएंगी तो कर लूंगी। इन दोनों की शादी करवा के मैं बहुत मुतमईन थी, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिल में कहीं धड़का भी लगा हुआ था। मैं सब ठीक होने की दुआ करते हुए अपने कमरे में आ गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि फिर से वही हुआ जिसका मुझे डर लग रहा था। बेटे के कमरे से शोर की आवाज आ रही थी। मैं अपने आप को संभालती हुई भाग कर गई तो वही मंजर था जो मैं एक बार पहले देख चुकी थी। मेरे इस बेटे ने भी मेरी भांजी को शादी की पहली रात ही तलाक दे दी थी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगा कोई वजह नहीं है और खुद ही घर छोड़कर चला गया। यह मामला मेरी समझ से बाहर था। आखिर ऐसे क्या वजह थी कि मेरी भांजी को एक बार फिर तलाक हो गई। इस बेचारे का तो घूंघट भी नहीं उठाया गया था। एक बार फिर हमारी बहुत बेइज्जती हुई। लोग कहने लगे इनके घर को नजर लग गई है, अच्छे खासे माँ के फरमाबरदार लड़के इस तरह बागी होकर घर छोड़कर चले गए। इस बार मामला मुझे मशकूक लग रहा था कि कोई तो ऐसी वजह होगी, ना कि मेरे दूसरे बेटे ने भी तलाक दे दी। आखिर ये क्या वजह थी? कसूर किसका था, मेरे बेटों का या मेरी भांजी का? मैं चकरा कर रह गई थी। ये इतनी सीधी बात हरगिज नहीं थी जितनी नजर आ रही थी। मैं पागल होने वाली हो गई थी। मेरे 2 बेटे घर छोड़ गए
एक मर गया और एक बिस्तर पर था। अब बस तीसरे नंबर वाला ही रह गया था। अजीब बात थी कि मेरी भांजी ने इस बार भी माँ बाप के साथ जाने से इनकार कर दिया, लेकिन मेरे साथ रहते हुए भी वो मेरे पास नहीं होती थी, हर वक्त कमरे में बंद रहती थी। मैं एक दिन बीमार हो गई तो अपने बेटे के साथ डॉक्टर के पास चली गई। वापसी पर मैंने बेटे से कहा, भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में आ गए। अभी हम दरवाजे पर ही थे कि मैंने अपने बड़े बेटे को देखा। वो किसी लड़की के साथ बैठा हुआ था। इस लड़की की हमारी तरफ पिष्ट थी, इसलिए मैं इसको देख न सकी। मैं चुपचाप बेटे को लेकर एक कोने में बैठ गई। इतनी दूर से मुझे इन दोनों की बातों की आवाज तो नहीं आ रही थी, मगर लग रहा था कि कोई परेशानी वाली बात है। जब भी वो दोनों बहस कर रहे थे, थोड़ी देर बाद मेरा बेटा जिस लड़की के साथ वहां से बाहर निकला, इसे देखकर मैं शक में मुब्तला हो गई, क्योंकि वो लग तो मेरी भांजी जैसी रही थी, मगर चूंकि इस लड़की ने नकाब किया हुआ था, इसलिए मैं पहचान नहीं पाई। फिर मैंने सोचा, मेरी भांजी यहाँ कैसे आ सकती है भला? इसको तो तलाक हुई है, वो क्यों आएगी यहाँ? मैंने इसी वक्त घर कॉल की और मुलाजिमा को कहा कि देखो जरा, मोना बीबी घर पर है। मुलाजिमा ने कुछ देर बाद बताया कि नहीं जी, वो तो घर पर नहीं है। मेरा शक फिर से बेदार हो गया। घर आकर मैंने अपनी भांजी पर नजर रखनी शुरू कर दी। इसकी कोई खास काबिल मशकूक हरकत नजर नहीं आई, सिवाय इसके कि वो कभी भी अकेली बाहर चली जाती थी। एक दिन मैं भी इसके पीछे पीछे हो ली। मुझे इस वक्त झटका लगा जब वो पार्क में मेरे दूसरे नंबर वाले बेटे से मिली। वो काफी डरपोक इससे बात कर रही थी। वो वाकई मेरे बेटों से मिल रही थी, मगर किस लिए और क्यों? उन्होंने तो इसे तलाक दे दी थी ना। मैंने भांजे से कई बार पूछने की कोशिश की थी कि मेरे बेटों ने तुम्हें तलाक क्यों दी थी, मगर वो कुछ बताती ही नहीं थी। आखिर मैंने ये राज जानने का फैसला कर लिया और एक दिन भांजे से कहा कि मैं तुम्हारी तीसरी शादी अपने तीसरे बेटे से करवाना चाहती हूँ, क्या तुम राजी हो? मेरी भांजी कहने लगी, आप मेरी माँ है, जो चाहे मेरी जिंदगी के साथ करें, आपका हक है। मैं इसकी शादी सिर्फ इसलिए कर रही थी, अपने तीसरे बेटे से करवाना चाह रही थी कि राज का पता चला सकूं कि आखिर ऐसा क्या होता है, या फिर वो मेरे बेटों से क्या कहती है, वो इसे तलाक देते थे। मैंने शादी तय कर दी। मेरी भांजी बहुत खुश लग रही थी। मेरे बेटे इससे 2 साल छोटा था, मगर इसने फिर भी मेरे फैसले पर सर झुका दिया। शादी वाली रात मैंने बेटे को कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ मुझे दवा ला दो। वो कपड़े बदल कर चला गया। इससे जाने के बाद मैंने इसकी शेरवानी पहनी और इसकी जगह खुद कमरे में चली गई और चेहरे पर सहरा डाल लिया। मैं कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो मेरी भांजी बेड पर बैठी हुई थी। अपने दूल्हे को देखते हुए वो बेड से उठ खड़ी हुई और खुद ही कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम अब मेरे शौहर हो, मगर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई समझा है। मैं तुम्हें इस रूप में कबूल नहीं कर सकती। तुम्हें याद है, मैं और तुम इकट्ठे बचपन में खेला करते थे और मैं तुम्हारे लाड़ उठाया करती थी। मैंने तुम्हें भाई का दर्जा दिया है, मैं तुम्हें शौहर का दर्जा नहीं दे सकती। और खाला ने मेरी शादी जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवा दी, और खाला ने ही कहा था कि तुम तलाक मांग लेना। वो बस दुनिया के सामने सरखुरो होना चाहती है कि इन्हें अपनी भांजी से कितना लगाव है। मेरी पहली शादियां भी उन्होंने करवाई और तलाक भी इन्हीं के कहने पर तुम्हारे भाइयों ने मुझे दी थी। आज भी खाला ने मुझे कमरे में भेजने से पहले यही कहा था कि मेरे बेटे को मेरा पैगाम दे देना कि वो तुम्हें तलाक दे दे, इसलिए तुम अपनी माँ के फैसले का एहतराम करो और मुझे तलाक दे दो। मैं चुप करके इसे सुन रही थी। इसने कहा, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो मेरी माँ से पूछ लो। इसने अपनी माँ को फोन किया तो थोड़ी देर बाद मेरी बहन भी कमरे में आ गई और कहने लगी, बेटा ये ठीक कह रही है, इसने हमेशा तुम्हें सगा भाई समझा है। इसने तो तुम्हारी माँ को बहुत मना किया था कि शादी ना करो, मगर वो मानी ही नहीं। मेरी बेटी तुम्हें शौहर के रूप में कबूल नहीं कर सकती, ये किसी और को पसंद करती है। तुम इसे तलाक दे दो ताकि इसकी शादी मैं इस लड़के से करवा दूं। मेरी बहन और भांजी को नहीं मालूम था कि सहरे के पीछे मैं हूँ। मोना को यही लग रहा था कि मेरा बेटा और इसका शौहर है। मेरी सांसें रुक गई। वो किस फराटे से झूठ बोल रही थी। वो और मेरी बहन मिले हुए थे और वो झूठ बोलकर मेरे बेटों से तलाक लेती रही थी। मेरी भांजी जिसे मैंने बेटे से बढ़कर चाहा था और मेरी सही बहन, वो ये सब मेरे साथ करेंगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। ये अंशकाफ इतना जानलेवा था कि मेरी जान निकल गई। मैंने चेहरे से सहरा उतार कर दूर फेंक दिया तो वो दोनों मुझे देखकर घबरा गई। मोना कहने लगी, खाला जान आप यहाँ? मेरी बहन भी मुझे देखकर दंग रह गई थी। इनको उम्मीद नहीं थी कि दुल्हे के रूप में इनके सामने मैं खड़ी होंगी। मैंने आगे बढ़कर इसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया और चिल्लाकर कहा, खबरदार मुझे खाला मत कहना, तुम इतनी घटिया निकलोगी मुझे यकीन नहीं आ रहा।
मेरे बेटों के खिलाफ मुझे भड़काती रही हो। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटों को घर से निकाल दिया था। मेरी बहन आगे बढ़ी कि आपा मेरी बात सुने, मगर मैंने इसे भी धक्का देकर पीछे कर दिया। मेरी भांजी परेशान हो गई कि मुझे सब पता चल गया है। इसने जल्दी से मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे कुर्सी पर बिठाकर आंखों ही आंखों में माँ से इशारे में कोई बात की और फौरन मेरे हाथ पाँव एक दुपट्टे से बांध दिए और मेरे मुंह में भी कपड़ा ठोस दिया। कहने लगी, सॉरी खाला जान, अगर आपको ये सब पता न चलता तो मुझे आपके साथ ये करना पड़ता। अब आप यहाँ ही कैद रहेंगी। मैंने चिल्लाना चाहा मगर मेरी आवाज मेरे मुंह में ही घुट कर रह गई। वो आखिर ऐसा क्यों कर रही थी? अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरी एक रिश्तेदार खातून की आवाज आई, मोना सब खैर है ना? कमरे से आवाजें आ रही थी। मोना ने दरवाजा खोलने के बजाय वहीं से कह दिया, हाँ जी सब ठीक है, आप आ जाएं, जाकर आराम करें। इसने कुर्सी समेट मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरे बेटे की आवाज मुझे सुनाई दी। वो मेरा पूछ रहा था कि अम्मी कहाँ है और वह इसे कह रही थी कि वो अपने कमरे में होंगी। मेरा बेटा यकीनन मुझे ढूंढ रहा था। मैं अंदर तड़प रही थी। मेरे साथ ऐसा भी होगा मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। कुछ देर बाद मुझे दोबारा बाहर से आवाजें आने लगी। मेरा बेटा मुझे ढूंढने बाहर चला गया था। मैंने कोशिश करके अपने आप को आजाद करने की कोशिश की मगर बेसुध इसने मुझे बहुत मजबूती से बांधा था। थोड़ी देर बाद मेरी बहन ने आकर मुझे वहां से निकाला और खींचते हुए स्टोर रूम में ले गई। ले जाकर बंद कर दिया। मैं अभी तक अपने बेटे की शेरवानी में ही मलविस थी। स्टोर रूम में बहुत गर्मी थी। मेरी हालत खराब होने लगी। मुझे उम्मीद थी कि मेरा बेटा मुझे ढूंढ लेगा मगर पूरा दिन गुजर गया और वो ना आया। मुझे वहां पे कैद हुए 2 दिन हो गए थे और मोना ने आकर दिन में सिर्फ एक बार खाना दिया था और अब भूख से मेरी जान निकल रही थी। मैंने अपने आप को आजाद करने की कोशिश शुरू कर दी जो मैं पिछले 2 दिन से कर रही थी। शाम तक मैंने जोर लगाकर कुर्सी को काफी ढीला कर दिया था और रात तक मैंने अपने आप को कोशिश करके छुड़ा लिया। रात को जैसे ही दरवाजा खोलकर मोना अंदर दाखिल हुई, मैंने स्टोर रूम में रखा हुआ डंडा उठाया और इसके सर पर मारकर इसे बेहोश कर दिया और खुद भागते हुए स्टोर रूम से बाहर आ गई। मेरा बेटा बेचारा मुझे ढूंढ कर थक गया था। मैं चीखते हुए बेटे को आवाज देने लगी। मेरी आवाज सुनते ही भागा चला आया। मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मैंने इसे बताया, तुम्हारी बीवी मोना ने मुझे अगवा किया था स्टोर में। बस इतना कहकर मैं बेहोश हो गई। होश आया तो हॉस्पिटल के बेड पर थी। मेरे दोनों बड़े बेटे भी सामने खड़े थे। मैं इन दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। मुझे लगा मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। मैंने मोना के बारे में पूछा तो छोटे वाला कहने लगा, वो धोखेबाज लड़की इस वक्त अपने माँ बाप के साथ जेल में है। मेरे बेटे ने मुझे सारी कहानी सुनाई जो ये थी कि मेरी बहन और बहनें भी शुरू दिन से ही मेरी दौलत पर नजरें जमाए बैठे थे। जब मेरे शौहर की वफात हो गई तो उन्होंने प्लान बनाया और अपनी बेटी मुझे दे दी ताकि मोना के जरिए मेरी दौलत पर कब्जा करें। मोना ने जब मेरे बड़े बेटे से शादी की तो शादी की रात इसे भी ये कहती रही कि मैं हमेशा तुम्हें अपना बड़ा भाई समझती हूँ, मैं तुमसे ये रिश्ता नहीं निभा सकती, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, मुझे तलाक दे दो। इसका मकसद था कि ये करके मेरे बेटों घर से निकलवा दे ताकि मेरी दौलत की वाहिद वारिस बन जाए। इसका प्लान कामयाब हुआ और मैंने बेटों को घर से निकाल दिया। इसने मेरे दूसरे बेटे को भी यूं ही कहकर तलाक ले ली और घर से निकलवा दिया। बाद में ये सच्ची होने की खातिर इनसे मिलती रही और इनको कहती कि तुम्हारी माँ ने तुमको घर और जिंदगी दोनों से निकाल दिया है, तुम लोग भी इससे ताल्लुक हो जाओ और कभी घर वापस न आना। यहाँ तक तो फिर भी बर्दाश्त था मगर इन दौलत की लालच लोगों ने मेरे छोटे बेटों का जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया ताकि वो दोनों मर जाएं। ये तो अल्लाह का करम था कि ये की जिंदगी बच गई। इन तीनों ने मिलकर मेरे हंसते बसते घर को उजाड़ डाला था। मेरी बेटी बेटी कहते जबान नहीं थकती थी और वो इस तरह की निकली थी कि मेरे घर को ही खा गई और ये सब इसे इसकी माँ बाप ने सिखाया था। आज वो तीनों जेल में हैं। मैं कभी कभी जेल में मोना से मिलने जाती हूँ। आखिर मैंने इसे बेटी समझकर पाला था। इसे देखने का दिल करता है तो चली जाती हूँ। वो मुझसे बहुत माफी मांगती है मगर मैं इसे माफ नहीं कर सकती। इसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया जो किसी सूरत वापस नहीं आ सकता था। इतना सब बताकर मेरी सास कहने लगी, मैंने अपने तीनों बेटों की दोबारा शादियां कर दी। बड़े बेटे उमर की तुमसे कर दी। आज मेरे बेटे अपने अपने घर में बहुत खुश हैं। मैं सुबह तुम्हारे साथ वॉक पर जाती हूँ तो वहां से रास्ता बदलकर कब्रिस्तान चली जाती हूँ। वहां बेटे की खबर जाती हूँ और फातिहा पढ़ती हूँ। इससे ढेरों बातें करती हूँ तो मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। अपनी सास की कहानी सुनकर मैंने नतीजा निकाला है कि जो दूसरों के साथ बुरा करता है अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता। मुझे यकीन है वो तीनों इस जहान में भी खुसारा उठाएंगे और आखिरत में भी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।
اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈس۔ ملتے ہیں اگلے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔